Today, it is the part 4 of the time. So, I am just here writing the time, or it is part 4. In a part 4, I will give some question for practice on month as well as how to use watch, and also there will be questions with the example. So first I am going to talk about the question A based on month. For example, as I have mentioned, also I am repeating this thing. Pictorial view of the month is always easier for the class 1 student to understand. So I will make a pictorial view of the different months on the number line. Like as, just say, number line, For month, I have also made earlier, but today I am also repeating the same thing because it is going to be based on this question. Just say the first month is the January. Now, second month, you are writing second month is the February. And third is the March. Then April. Then May. You can make arrow. This is the fourth month. This is the fifth month. Then June. This is the sixth month. Then July. Seventh month. August. This is the eighth month. September. Nine. October. November. And then December. After December, this is 10th month. This is 11. This is 12. But I'll suggest to start January. Again, it is going to be the first month. Now, October month, I will make little bit clear. Here it is 10th month should be very clearly it should be written because just it is 10th month. Rest of the thing I have already written. You can say in the previous lectures what is the number of days in a month, but question based on this are as follow, and one should be very careful that this is the month and this is the increasing order. ये बहुत जरूरी है जो है. अब देखिए हम I am just putting question by using the
before, after, in between. There will be some question I am giving you, and you ask the students to answer based on this number line. So, questions. 1. Now, one question is February comes after. February comes after. He has to fill. Now, I'll just give you hint. Here the number line based on the month has given. Just put February. Comes after means after January, the February will come. So he should fill up these things. Then the second, December comes after. Then again fill up the thing. Third, March comes after. He has to fill up this thing. Fourth, April comes before. Fifth, January comes after. Here you have to notice this. Since here January is there, so he should remember that January will come after December. So it becomes easier for the students to understand. 6, January comes before. You should fill up. Then 7th question. June comes between. A month will be there and fill up. Just say June is here. So June is between May and July. So you should fill up like this. H. 8th question. September comes between. You should fill up. Then 9. November comes between. They have to fill up. Then 10, you can take anyone. April comes after and before. I have mixed up the both questions. 11, you can say May comes after
month and before. Now, this is based on the month. So, students will, they are very small students. So, because of that, I have given much emphasis on the class on number line. Because there are so many things which can be explained in a number line in a better way than other things. So, this is based on the month. Now, I am going to ask the questions based on the watch. So, I will just erase this one. Erase this one. B based on watch. I have also mentioned in my previous lecture, the watch is in a circular scale and there is an outer number, it mentions hour, there is an internal number, mention the minute. But once you are going to use hour and minute, so I will give you one example so that you can understand very well. For example, suppose someone say, see, hour is also in 1 digit and 2 digit. जरा ध्यान से सुनिएगा. Minutes is also in the 1 digit and 2 digits. So be careful, use the ones and tens. So first, I will make here, I will just give some example. Suppose you say you want to write 5 hours, 5 minutes. So instead of 5, you mention 0, 5 and 0, 5. Just O, T, O, T. That means this is mention the hour and this mention the minutes. Hours. Suppose this is a single digit. 5 minutes is a single digit. Starting from the beginning, I said 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, write it. Up to 9, 0, 9. After that, 10 will come. For example, suppose I am saying that you have to write, another example I am giving, 10 hours, 35 minutes. So it becomes very easy, 10, 0T and 35 minutes. जनरली क्या होता है, लड़के जो है 5 मिनट्स के लिए 5 ये 0 नहीं लिखते हैं और 5 लिख देते हैं तो 50 हो जाएगा. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. ये आपका जो है बहुत प्रिकॉशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉशन मैं कर रहा हूँ. ये कॉशन है, ये आपको लिखने के लिए बच्चों के लिए बहुत बता दीजिएगा. ये इस तरह से ही लिखेंगे क्योंकि वॉच के बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा जो है. अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ जिसको आंसर देना होगा जो है. ये क्वेश्चन सेपरेटली मैं दूंगा. क्वेश्चंस ऑन आवर, इसको आप कह सकते हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं. ये पूरा बोर्ड में यूज करूंगा जो है. अब देखिए, अब ये केवल क्वेश्चन देना है और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो है ये स्मॉल हैंड जो रहेगा, हैंड और आवर हैंड, अब इसका केवल ध्यान रखना है. मैं 2-3 फिगर बनाऊंगा. जैसे मैं फिगर बना रहा हूं, पहला फिगर बना रहा हूं, इसके लिए सर्किल हमको खींचना है. और जैसे मैंने कहा कि टॉप पर आप 12 लिख दीजिए.
12, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर 9 लिखिए। फिर भी इसके बाद शुरू करें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1 और 2, 4 and 5, 7 and 8, 10 and 11। और मैंने कहा है कि आपको जो है ये वॉच है, केवल आपको दिखा रहा है कि आउटर नंबर विच कैन बी यूज एज ए आवर। अब देखिए स्मॉल हैंड है, या देखिए स्मॉल हैंड यहाँ पर जा रख लीजिए। अब स्मॉल हैंड कैन बी डायरेक्टली 3 के साइड में हो सकता है। स्मॉल हैंड बड़ा इसलिए बना रहा हूं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको कैसे लिखिएगा? बाय यूजिंग दैट वन। सो दिस कैन बी रिटेन एज दिस। देखिए 3 आवर्स है तो 0 3 OT करिए और 0 0 बिकॉज देर इज नो एनी मिनट, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी यहां पर 0 T लिखिए और इसको बोलते हैं 3 आवर। 3 आवर्स को ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा जो। अब जरा ध्यान सुन लीजिएगा जो। अब सेम आप दूसरा फिगर बनाइए। कोई कठिन नहीं है, नॉट डिफिकल्ट। 6 3 9। अब मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि क्लास 1 के बच्चे हैं, वो अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं जानते हैं। अब इसको भी इसी तरह से करिए आप जो है 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यहां पर देखिए, अगर ये बच्चा जो है ऐसे लिखता है, ये मान के चले कि छोटा मैं बना रहा हूं। अब इसको जो 6 आवर्स कैसे लिखा जाएगा वो आप उसको कहिए कि लिखे, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर 3 आवर्स का कैसे लिखा जाएगा हमने बता दिया है, तो 6 आवर्स कैसे लिखा जाएगा उसको बोलिए लिखने के लिए। अब देखिए एक तीसरा फिगर मैं बना रहा हूं। 12 6 3 9। उसी तरह करिए 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अब देखिए, अब इसको मान दे सुई हमारा जो है इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। यह है स्मॉल, क्योंकि एग्जैक्ट दिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 आवर्स। तो उसको बोलिए कि 8 आवर्स को कैसे लिखा जाएगा वो लिखे यहां पर। बात समझ? ये आपका जो है आवर्स का हो गया जो है पहला वाला। अब देखिए, अब मैं मिनट्स पर जा रहा हूं, दूसरा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन ऑन आवर्स, अ क्वेश्चन ऑन मिनट्स। अब मिनट्स के लिए आउटर नंबर, बड़ी बड़ी किताब में क्या होता है कि इनर छोटे छोटे लिखा रहता है, स्मॉल स्मॉल नंबर्स। तो हम यहाँ पे इनर बनाएंगे जो है। अब एक इनर मैं बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए ऐसे जो है, ये थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। और देखिए 12 के नीचे 60 होता है और ये 6 के नीचे ये 30 होता है। ध्यान देखिएगा। फिर यहां पर 15 होता है और फिर यहां पर 45 होता है। ध्यान देखिएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि यहां पर हम 5 लिखेंगे और यहां पर हम 10 लिखेंगे। और माना जाएगा कि यहां से लेकर ये 5 डिवीजन में बटा हुआ है, 1 2 3 4।
ठीक है, इस तरह बटा हुआ है। फिर आपका जो है 15 के बाद जो है 20 आएगा और 25 आएगा। हर जो 5 में बटा हुआ है। कहने का मतलब कि शुरू होगा 1 2 3 4 5 मिनट्स हो जाएगा। फिर यहां पर जाएंगे तो 6 7 8 और 9, क्योंकि अब ये लिख नहीं सकते इसलिए हमने अवॉइड किया जो है। अब देखिए 30 के बाद जो है 35 आएगा। फिर इसके बाद ये 40 आएगा, इसके बाद 50 आएगा और इसके बाद 55 आएगा। ये 50 अंदर रहेगा। ये बार बार हम आवर की बात किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए। ये 50 आ जाएगा। अब ये बिग हैंड है, इसमें समझिए, ये क्वेश्चन ऑन मिनट्स में मतलब बिग हैंड, बिग हैंड और मिनट्स हैंड, मिनट्स हैंड। अब देखिए भले यहां सुई बड़ा बड़ा हुआ लेकिन छोटा सुई है जो है, समझाने के लिए मैंने बताया। अब सपोज कर लीजिए कि आपका जो है ये जो बड़ी सुई मिनट्स वाली है, मिनट्स वाली सुई है, ये यहां पर है। अब इसको कैसे लिखिएगा, और इसको लिखने के लिए आप भी वही करिए, ओ टी और यहां पर 2 बिंदु दीजिए। यहां पर 0 0 बिकॉज देयर इज नो आवर, और यहां पर क्या हो जाएगा 25 मिनट्स। तो इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 25 मिनट्स। और लड़का पढ़ा होगा तो अगर ये बीच में होगा तो काउंट कर सकता है 25, और जितने भी बड़ा वो काउंट करके यहां पे लिख सकता है। इसीलिए हमने ध्यान दिया कि आपको जो है अब 5 मान लेते मिनट्स होगा तो आपको 05 लिखना होगा, जो हम पहले में बता चुका हूं, कहीं पर जो यहां पर बता चुका हूं। तो ये मिनट्स में एक और एग्जाम्पल दूंगा जो है, क्योंकि तीसरा एग्जाम्पल भी देना है जो है, एक इसका एग्जाम्पल और दे देता हूं जो है। अब मैं यहां पर केवल 60 लिखूंगा और 30 लिखूंगा, यहां पर 15 लिखूंगा, यहां पर 45, और केवल यहां पर 5 10, फिर 20 25 35 40, फिर यहां पर 50 और 55। अब सपोज कर लीजिए कि आपका जो है मिनट्स आपका जो है 10 है, तो इसको कैसे लिखिएगा, यूज 0 टी अगेन ओ टी 2 बिंदु दीजिए। आवर क्या है 0 0 आवर है, और मिनट्स क्या है 1 0, 2 डिजिट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहेंगे 10 मिनट्स। अब लास्ट एग्जांपल देंगे कि आवर और मिनट दोनों होगा तो क्या करेंगे। उसमें आप इक्वल हैंड नहीं बना सकते, तो मैं यहां पर एक बना रहा हूं, थर्ड बेस्ड ऑन आवर एंड मिनट्स, इसको आवर समझिएगा, और मिनट्स। अभी ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर इसको पार्टीशन कर दे रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और फिर यहां पर भी मैं इसको मिटा के जरा पार्टीशन कर देता हूं, ये इरेज कर देता हूं, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं।
देखिए छोटे बच्चे हैं, इनको कंफ्यूजन करोगे तो एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लाइन यहां पर खींच देता हूं, ये लाइन में ऐसे खींच देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 10 मिनट्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, अब मैं बना रहा हूं आपका जो थोड़ा बड़ा सर्किल बना दे रहा हूं, जिससे कि मतलब जो आपका जो है ये ठीक हो जाए। अब देखिए आवर है 12 है, आउटर रिंग ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये 6 है, ये 15 है, 15 नो ये इट इज 3 है, सॉरी ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 9 है। आउटर को आप ऐसे डायरेक्शन दे दीजिए, इसको ऐसे डायरेक्शन दे दीजिए, तो आपको लगेगा कि आउटर है जो है। अब ये सेंटर है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब आपको इसको बांटना होगा, तो आप बांटेंगे 1 2 4 5 7 8 और देन 10 11। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है आवर्स है। अब देखिए अगर मिनट्स करना होगा तो यहां पर 15, कुछ नहीं करना है, टेबल आप जब पढ़ लीजिए 5 का, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 and 55 and 60। अब इंटरनल नंबर है ये मिनट्स में, मैं इधर लिख देता हूं, ये इंटरनल नंबर ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा तो ये मिनट्स है। अब ध्यान देखिए, अब यहां पर आप सुई इकट्ठे नहीं बना सकते, छोटा छोटा बना सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपका जो है सुई जो है स्मॉल हैंड जो है आपका यहां पर ऐसे जा रहा है, कहने का मतलब ये 2 और 3 के बीच में जा रहा है, क्योंकि आवर हैंड है तो 2 के 3 के बीच में मतलब 2 आवर्स हुआ, और 2 3 के बीच में तो मिनट्स का वाला सुई देखना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि मिनट्स की सुई जो है आपका ऐसे यहां पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये हुआ 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, ओ लिखिए टी लिखिए, ओ लिखिए टी लिखिए, और 2 शून्य यहां पर ऐसे दे दीजिए। अब ये 2 आवर्स है तो 2 क्या है, 1 है, तो यहां पर 2 आएगा, और टेंस क्या है, 0 होगा। अब 30 है, 2 डिजिट्स है, ओटी, तो यहां पर 3 आएगा, ये 0 आएगा। तो व्हेन यू वांट टू राइट आवर्स एंड मिनट, फॉलो दिस वन। क्वेश्चन कैन बी एनी टाइप। If you want to follow only minutes, you circle inner circle, and this is for the external for hour. This is very very important for a teacher first to understand, then explain to the, you can say the teacher. Very important to make the diagram by the teacher first,
and the student should copy, try to make the same thing. And I'm sure that if you use this concept of board and chalk, then in the whole year, 1 year is sufficient time. The student can understand what teacher want to communicate it. Now, there is some questions and other things which I will give you. अब एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. Suppose this is the ring, and if you cut the ring at one place, it become a straight line. So how on the number line hour and minutes will be written, I will tell you. So I'm removing this one. मैं यहां से मिटा रहा हूं. Now I will redraw watch on number line. That is very, very important. अब जरा देखिएगा. Number line I will say. You can say watch on number line. As I mentioned that if there is a circle, ring, cut, it becomes a straight line. So we should make a straight line, and obviously, as you know that the outer ring is classified between 1 to 12. So यहाँ पर देखिए सेफ्टी के लिए ये 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 1 होगा अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड हो जाएगा. अगर कट करेंगे तो अपवर्ड हो जाएगा. मान लीजिए अपवर्ड आवर है, देन हियर 2, 3, 4 और थोड़ा 5 को बड़ा कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको सहूलियत रहेगा. और इसको ऐसे एरो बना दीजिए सभी में. हो गया 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 11 and 12. But I will also let you draw another line which becomes 1. ध्यान सुनिएगा जो है. अब देखिए 5 ये आवर्स हो जाएगा. रिमेम्बरेंस 10 भी आवर्स हो जाएगा. और ऑब्वियसली 12 तक जो है आवर्स चलेगा, क्योंकि इन 1 राउंड देयर इज 12 आवर. अब जरा देखिएगा जो है दूसरा दिखेगा जो. अब जैसे मैंने कहा टेबल पढ़िए, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, इसको नीचे कर दीजिए इनर सर्किल. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35.
Now, this is the minutes. In inner circle. Of watch. और ये क्या है? एक्सटर्नल सर्किल. एक्सटर्नल नंबर इन आवर्स. ये चीज बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो है ये 1, 2, 3, 4 ये हर नंबर 5 में डिवाइडेड है. जो ध्यान रखिएगा, एक दो जगह बना दे रहा हूं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. अब टीचर को कहना चाहिए कि सब में बनाओ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं जो है. अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि अब क्वेश्चन दे रहा हूं which will help the students to answer with example. Question. Questions. अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा. In a morning, M is used. In the evening, PM is used. 12 आवर्स के पहले, दिन में 12 आवर्स के पहले एम होता है, और इन डे 12 नून के बाद जो है पीएम होता है. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. वो मैं बहुत वो एक्सप्लेन कर चुका हूं जो है. क्वेश्चन 1. अब आंसर देना है. हाउ टू राइट? 7 आवर इन द मॉर्निंग. अब एग्जाम्पल देगा. अब इन द मॉर्निंग का है, मतलब बिफोर 12 आवर, तो एम होना चाहिए. तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं. 7.00 और ये हो जाएगा ए एम. और यहाँ पर 0T भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 0T करेंगे तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं. तो दैट इज द वे इन विच 7 आवर्स इन द मॉर्निंग कहा जाए. क्वेश्चन अगर पूछा गया, राइट एंड क्वेश्चन विच आई विल नॉट आंसर. 7 आवर्स इन द इवनिंग. 7 आवर इन द इवनिंग. अब ये इसी तरह से वो कहे, लेकिन इवनिंग में पीएम होता है. अब देखिए, थर्ड नून आवर. अब इसको भी उसको बताना चाहिए. नून क्या होता है? 12-00. आई विल नॉट मेंशन इट. चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं बता देता हूं. 12-00 ये ओ है, टी है, ओ है, टी है. फिर 5 आवर्स इन द मॉर्निंग. Now a student should answer this one. 5 hours in the evening. This is, you can say, this question. I've given some example, but I am giving another example also. 6. इसको यहाँ पर कर दीजिए. 6 question. 1 hour in the morning.
then B 7, 8 hour in the morning. Then 11 hour in the morning. You should fill up this gap. You should write 9, 3 hours afternoon. Afternoon also start from 12. तो यहां पर भी PM होना चाहिए जो है 10. 6 hour afternoon. 7, 11, 8 hours, 8 hour in the evening. Ten hours in the night. अब देखिए नाइट भी आफ्टर 12 आता है, 12 नून आता है, तो नाइट में भी आपका जो है वो आपका जो है PM होना चाहिए. अब सपोज कर लीजिए कि बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं, वो भी मैं नंबर लाइन पर दूंगा जो है हिंट. क्या हिंट है? आप जो है नंबर लाइन बनाइए, जो पहले बनाया गया था, लेकिन इतने बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट इस तरह के एम देने के लिए आप यहां से यहां तक जाइए. इसको 0 मतलब 12 नाइट, यहां पर 12 नून है, और फिर ये 24 ये नाइट है. और ये भी नाइट है, बट इसको 0 पढ़ेंगे. सिंपल है कि इस ड्यूरेशन में ये AM है और इस ड्यूरेशन में ये PM है. अब AM में नाइट भी आ जा रहा है, मॉर्निंग भी आ जा रहा है, नून में कुछ नहीं लिखा जाता है. नून से जो आफ्टरनून भी आ जा रहा है, बिफोर नून भी आ जा रहा है, इवनिंग भी आ जा रहा है, नाइट भी आ रहा है. तो ये एक्चुअली जो है नंबर लाइन जो यूज करके सबका आंसर जो है दिया जा सकता है. सो नाउ आई विल से दैट थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट 4 ऑन द टाइम. थैंक यू वेरी मच.